দৰৱ খোৱা কমাই দিয়ক আৰু এই গেছৰ সহায়ত বহু ডাঙৰ ডাঙৰ ৰোগ নিৰাময় কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। ধৰি লওক কেঞ্চাৰ, ধৰি লওক নিউৰ সমস্যা, ধৰি লওক বিষৰ সমস্যা, ডায়েবেটিছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্কিনৰ সমস্যা, সকলোবিলাক সমস্যাৰ সমাধান এতিয়া এনেধৰণৰ এটা বিশেষ গেছ, আৰু যিটো গেছৰ নাম হৈছে অজন গেছ। আৰু এই অজন গেছৰ জৰিয়তে এতিয়া বহু চিকিৎসা চলি আছে গুৱাহাটীত। এনে এটা চিকিৎসা পদ্ধতি যিটো চিকিৎসা পদ্ধতি প্ৰায় 100 বছৰ, 1000 বছৰ পুৰণি, কিন্তু এই কথা বহু চিকিৎসালয়ত আৰু বহু চিকিৎসকে আপোনালোকক নকয়। কিন্তু আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু এজন বিশেষ চিকিৎসকৰ সৈতে মই আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব, বহু নজনা কথা আপোনালোকে জানিব পাৰিব। নমস্কাৰ, মই চক্ৰপাণি পৰাশৰ আৰু আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বাৰ্তালাপ, আৰু মই আছোঁ হাতীগাঁৱত, আৰু হাতীগাঁৱৰ এখন বিশেষ চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানলৈ মই আজি আহিছোঁ। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এক বিশেষ চিকিৎসা পদ্ধতি, আৰু এই চিকিৎসা পদ্ধতিৰ নাম হৈছে অজন থেৰাপি। আৰু এই বিশেষ চিকিৎসা পদ্ধতি লৈ আহিছে আভিয়ানা হেল্থে, আৰু এই আভিয়ানা হেল্থ আছে হাতীগাঁৱৰ এটা বিশেষ স্থানত। গতিকে আহক এই চিকিৎসা পদ্ধতি লৈ অহা চিকিৎসকসকলৰ সৈতে আমি কথা পাতোঁ আৰু কেনেধৰণে এই চিকিৎসা পদ্ধতি বৰ্তমান জনপ্ৰিয় হৈছে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত। বলক ভিতৰলৈ যাওঁ। আহক ভিতৰলৈ সোমাই আহক। আৰু এয়াই হৈছে আভিয়ানা হেল্থ, আৰু ইয়াতেই হ'ব অজন থেৰাপি। আৰু বিশেষ চিকিৎসকগৰাকীৰ সৈতে মই চিনাকি কৰি দিয়াৰ প্ৰাক্ষণত মই আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছোঁ মনোজ শৰ্মা ডাঙৰীয়াক। মনোজ দা, নমস্কাৰ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। আৰু মনোজ দাৰ বিষয়ে মই কৈ থওঁ যে তেখেতে চিকিৎসা ব্যৱস্থাটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থকাৰ বাবে তামিলনাডুৰ গভৰ্ণৰে তেখেতক বিশেষভাৱে সন্মানিত কৰিছিল, আৰু 2025 চনৰ 1 ডিচেম্বৰ তাৰিখে। গতিকে সেইটো এটা আপোনাৰ কাৰণে খুব ডাঙৰ সন্মান বুলি ক'ব লাগিব। বহুত এইটো আচলতে মই বহুত দিনৰ পৰা মই তাত আমাৰ অসমীয়া মানুহখিনিৰ লগত মই অসমৰ পৰা যিখিনি মানুহ যায়, মই 24 আৱাৰ্ছ তেওঁলোকক মই মানে যিমান পাৰোঁ সহায় কৰিব চেষ্টা কৰোঁ। সঁচাকৈ সেইটো এটা মোৰ কাৰণে বিৰাট ডাঙৰ ভাগ্যৰ কথা বুলি মই ক'ব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে তাত ক'ভিডৰ সময়তো মই বহুত কাম কৰিছোঁ, বা নেচাৰেল যিখিনি আমাৰ পানী চানীৰ প্ৰব্লেম থাকে সেইখিনিতো মই লাগি থাকোঁ। সেইবিলাক তেখেতসকলে ন'টিচ কৰি পেলাই মানে তেখেতে সন্মানটো দিলে, মই খুব ভাগ্যৱান বুলিয়ে মই ক'ব লাগিব। সেইখিনি মই মাজতে ফটো লগাই দিছোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে। আৰু মনোজ দাৰ বিষয়ে মই কৈ থওঁ আপোনালোকক যে তেখেতে অসমৰ পৰা যোৱা যিসকল ৰোগী, যেতিয়া তেওঁলোকে গৈ তামিলনাডু বা ছাউথ ইণ্ডিয়াত গৈ পেলাই তেওঁলোকে চিকিৎসা কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়া মানে নিজৰ কষ্টকো নেওচি তেখেতে তেওঁলোকক সহায় কৰে। আৰু এইবাৰ তেওঁ ভাবিলে যে এনেকুৱা ব্যৱস্থাটো গুৱাহাটী বা নৰ্থ ইষ্টলৈ লৈ অহাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিব পাৰি, আৰু যাৰ বাবে জন্ম হ'ল এই ব্যৱস্থাৰ। গতিকে মনোজ দা এবাৰ বুজাই দিয়ক মোক, তাৰপিছত মই চিকিৎসক। এইটো আমাৰ একচুৱেলি আমাৰ ইয়াৰে আভিয়ানা হেল্থ, এইটো অজন থেৰাপি ওপৰত আমাৰ ট্ৰিটমেণ্টটো হয়। চব ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট আমাৰ ইয়াতে হয়। মানুহৰ শৰীৰত যিমান যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হ'লেও আমি এই থেৰাপিৰ দ্বাৰাই আমি বহুখিনি মানুহক এতিয়ালৈকে সকাহ দিছোঁ। ইভেন আমাৰ অসমৰ মানুহ চেন্নাইত আহি এইটো ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি ভাল হৈছে ৰিচেণ্টলি। অ'কে। আৰু তাৰ পৰা বহুত এনকুৱাৰী আহিছিলে। তেখেতসকলে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে যে আপোনালোকে এটা গুৱাহাটীত চেণ্টাৰ খোলক, আমাৰ তাত গৈ থাকি পেলাই অকণমান অসুবিধা পায়। তো সেইটো কাৰণে আমি খুব সোনকালে মানে এটা চিন্তা এটা কৰি এই হাতীগাঁৱৰ মেইন ৰোডত সেইটো আমি আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ এটা আৰম্ভ কৰিছোঁ। অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ। নিশ্চয় নিশ্চয়। ইয়াতে হ'ব সেই থেৰাপিসমূহ। এইটো মানে এতিয়া জাষ্ট আৰম্ভণি, ছেটআপটো হোৱাই নাই। আমি অহাকালি এইটো ইনগ্ৰেশ্যন কৰিম, আৰু অহা পৰহি মানে মঙলবাৰৰ পৰা আমাৰ পেচেণ্টৰ এপইণ্টমেণ্ট আছে, আমি চাম। নিশ্চয়। কাইলৈ আমি আমাৰ অকণমান গেষ্ট মাতিছোঁ। নিশ্চয়, কাইলৈ অকণ পূজা হ'ব ইয়াত, তাৰপিছতে আৰম্ভ হ'ব। আৰু এইখিনিতে কৈ থওঁ, অসমৰ পৰা যিসকল লোকে গৈ বাহিৰত গৈ পেলাই অজন থেৰাপি লৈছিল, অজন থেৰাপি কি মই আপোনালোকক ক'ম, চিকিৎসকে বুজাই ক'ব, কিন্তু সেই অজন থেৰাপি অসমৰ মানুহে গৈ বাহিৰত ল'বলগীয়া হৈছিল, কিন্তু এতিয়া সেই সুবিধাখিনি অসমৰ মানুহে গুৱাহাটীতে পাব। সেইকাৰণেই মনোজ দাই এই কথাখিনি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছে, হয়নে? হয় হয় হয়, আপোনালোকে একদম কোনো মানে চিন্তা কৰিব নালাগে, একো অসুবিধা নহয়। এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আমাক ফোনত ইয়াতে কথা পাতি এপইণ্টমেণ্ট লৈ ইয়াতে আহিব। নিশ্চয়, একদম সুকলমে চবখিনি হ'ব। আৰু মেচিনবোৰ আহি গ'ল, প্ৰায় আহিছে, মেচিন আহিছে আৰু আহি আছে, লগাব আছে। জাষ্ট মানে যোৱাকালি ৰাতিহে ছেটআপটো আমাৰ ৰেডি হৈছে। আৰু অৱশেষত মই লগ পালোঁ ডক্টৰ কাৰ্তিকায়ন বিশ্বনাথন ছাৰক, আৰু ছাৰৰ লগত মই ইতিমধ্যে পডকাষ্ট কৰিছিলোঁ এটা, যিটো পডকাষ্ট যথেষ্ট ভাইৰেল হৈছিলে আৰু বহুতে নতুন নতুন জ্ঞান লাভ কৰিছিলে চিকিৎসা সম্পৰ্কীয়। আৰু এইগৰাকী চিকিৎসকে বৰ্তমান অসমৰ গুৱাহাটীত আহি এই বিশেষ যিখন মেডিকেল অনুষ্ঠান বা যিখন চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠান তেওঁ আৰম্ভ কৰিছে। ছাৰ নমস্তে। और आप कैसे हैं? आप भी
बहुत बहुत अच्छे हैं। सर आपने बताया था मेरे पॉडकास्ट में कि ये थेरापी हम लोग असम में लेके आएंगे और अभी लेके आ गया आप सर। तो फर्स्ट क्वेश्चन सर, ओजोन थेरापी क्या है, ये थोड़ा समझा दीजिए मेरे दर्शकों को। या बहुत बहुत शुक्रिया Thank you, मेरे sir. को फिर एक बार आपसे मुलाकात होने में पॉडकास्ट में। हम तकरीबन ऑलमोस्ट 10-12 महीने पहले एक पॉडकास्ट करे थे, तो उसमें हम बता रहे थे कि जो थेरेपीज़ हम चेन्नई में कर रहे हैं, ये ओजोन थेरेपी, हाइड्रोजन थेरेपी, ऐसा बहुत कर रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में पहली बार ये सब जो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, चेन्नई, बेंगलुरु, बॉम्बे, दिल्ली में जो अवेलेबल हैं, गुवाहाटी में पहले बार नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए हम इधर लेके आए हैं। तो ये आने में बहुत कुछ टाइम लगा, बहुत सोचना पड़ा, मगर मेरा इतना खुशी है इस दिन। तो ये ट्रीटमेंट्स वगैरह सब इधर के लोगों के लिए, इधर के लोग ट्रीटमेंट के लिए बहुत दूर जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, बेंगलुरु जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं। वो सब जाने के पहले हम ये ट्रीटमेंट इस्तेमाल करें, वो ठीक हो जाएंगे, इधर ही ठीक हो जाएंगे, कहीं दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें मेन ट्रीटमेंट है ओजोन थेरेपी। ओजोन थेरेपी ऑलमोस्ट 100 ईयर्स, 100 साल से दुनिया भर इस्तेमाल करा जा रहा है। पहला जर्मनी में, उसके बाद अमेरिका में। तो इंडिया में 15-20 साल से थोड़ा बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहा है इसका। तो मैं चेन्नई सेंटर तकरीबन 11 साल से रन कर रहा हूँ। तो हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट है ओजोन थेरेपी से। बहुत सारे डिफरेंट पेशेंट्स आते हैं। सो उसके हिसाब से वो जो ट्रीटमेंट हम इधर लेके आए हैं, तो मेरा विश्वास है कि इधर के लोगों को भी बहुत बेनिफिट होगा। सर ओजोन मीन्स O3। यस, O3। सर O3 से ये ट्रीटमेंट कैसे होते हैं, थोड़ा डिटेल्स में समझा दीजिए। तो ऑक्सीजन इज O2, O2 यस, O3 इज ओजोन। तो हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट में ऑक्सीजन से ओजोन बनाते हैं। ओजोन बहुत अनस्टेबल गैस है। तो हम विद इन से हाफ एन आवर, 1 आवर ट्रीटमेंट, विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम वी हैव टू इनिशिएट द ट्रीटमेंट, शुरू करना पड़ता है। तो इसके लिए स्पेशल ओजोन जनरेटर्स होते हैं। वो हमारे पास हाई क्वालिटी फैंटास्टिक मेड इन इंडिया ओजोन जनरेटर, पहले इसके पहले जब 10-15 साल पहले ओजोन जनरेटर मंगाना होता बाहर से, तो कनाडा से मंगाना होता, जर्मनी से मंगाना होता। आजकल इंडिया में ही वेरी गुड क्वालिटी ओजोन जनरेटर्स आर अवेलेबल एंड वी आर यूजिंग दैट ओजोन। तो ये जब गैस, इट्स एक्चुअली अ गैस, तो जब वेरी अनस्टेबल गैस है ओजोन। तो ये ओजोन, ये हम क्या करते हैं, हम वेरियस प्रोसीजर्स करते हैं ओजोन से। ओजोन से स्कैल्प से लेके या पाँव तक सब ट्रीटमेंट होता है इसमें। फॉर एग्जांपल स्किन प्रॉब्लम्स है, स्किन प्रॉब्लम्स है, स्कैल्प में स्कैल्प ओजोन यूज़ करते हैं। ईयर प्रॉब्लम्स है, नहीं तो कुछ का अंदर ब्रेन का प्रॉब्लम्स है, ईयर ओजोन यूज़ करते हैं। तो लंग का प्रॉब्लम है, बोटो बोलते हैं, ब्रीदिंग ओजोन थ्रू ऑयल। ओजोन डायरेक्ट इनहेलेशन, डायरेक्टली सांस लेना, इट्स नॉट गुड। सो उसमें हम वी यूज इट थ्रू ऑयल। तो व्हेनेवर वी आर गिविंग ओजोन फॉर द लंग्स, फॉर द स्किन एंड फॉर डायबिटिक फुट में बहुत अच्छा काम करता है। लिम्ब बैगिंग बोलते हैं प्रोसीजर को। और मेमोरी लॉस, पार्किंसंस, डिमेंशिया, आर्थराइटिस में तो हम ओजोन इंजेक्शंस देते हैं। घुटनों में इंजेक्शंस जो देते हैं ओजोन का होता है। अब पहले, इसके पहले एक ही जो था, स्टेरॉइड्स देते थे हम, स्टेरॉइड्स के बदले ओजोन इंजेक्शंस दे रहे हैं। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी नहीं है एंड रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा है। सो ये ओजोन जब हम देते हैं, ड्रिप्स के हिसाब से देते हैं। सो वी ऑल्सो डू कुछ आपको
प्रॉब्लम है वेजेना में वेजेनल ओजोन, ब्लैडर में है तो ब्लैडर ओजोन. सो ओजोन इज गिवन इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड सिस्टमिकली इंट्रावेनसली भी देते हैं. एवरी पेन, एवरी बीमारी का सॉल्यूशन ओजोन ही है. पेन मैनेजमेंट में पेन बोले तो जब दर्द होता है, हाँ. ओजोन से बेहतर कोई भी नहीं है मॉलिक्यूल वो पेन गायब करने में. ओके. पेन किसी भी तरह का हो, पेन घुटनों का हो, पेन अंदर का है, कुछ भी है, पेन मैनेजमेंट. वो थोड़ा कैंसर पेशेंट्स होते हैं, लास्ट में पेन मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है. कुछ भी दवाई लिए और मॉर्फिन लिए तो भी उन लोगों का पेन आते रहता है. तो उन लोगों के लिए ओजोन बहुत बहुत अच्छा सॉल्यूशन है. सो पेन मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है. और जो भी ये क्रॉनिक कंडीशंस बोलते हैं, क्रॉनिक कंडीशंस बोले तो मतलब ये डायबिटीज़ होता है, हार्ट का प्रॉब्लम होता है, ऐसा बहुत इश्यूज में ओजोन in addition to regular medications will help the patient to reduce their dependence on medications. तो हम रेगुलर जो मेडिसिन्स लेते हैं वो भी ले सकते हैं, ओजोन along with ओजोन ले सकते हैं. रेगुलर मेडिसिन्स जो हम ले रहे हैं उसका नंबर ऑफ मेडिसिन्स और डोसिंग थोड़ा कम कर सकते हैं. समझ में आएगा. सो एंड ये जो पहली बार जब प्रॉब्लम हो रहा है, अर्लियर प्रेजेंटेशन बोलते हो आप 3 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद आए तो थोड़ा टाइम लगेगा ओजोन सेशंस में. जो भी प्रॉब्लम अर्लियर प्रेजेंट होता है उसमें कंप्लीटली मैनेज कर सकते हैं, कंप्लीटली रिवर्स हो जाता है समटाइम्स. वो कंडीशन के हिसाब से. अगेन न्यूरो से लेके पाँव तक सब कंडीशंस का इलाज ओजोन कर सकता है. মই এবাৰ আপোনালোকক বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ অসমীয়াতে. ছাৰে কৈছে যে ওজনৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ ছালৰ পৰা ভৰিৰ তলুৱালৈকে সকলো সমস্যাৰ সমাধান ওজনত আছে. আৰু সেই ওজন চিকিৎসা পদ্ধতিটো অসমলৈ তেওঁ লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছে. আৰু ইতিমধ্যে অসমৰ বহু মানুহে গৈ ছাৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰে. তেখেত তামিলনাডুত যিহেতু থাকে গতিকে তাত গৈ যোগাযোগ কৰে. আৰু ছাৰে ভাবিলে যে এইবাৰ অসমলৈ লৈ আহোঁ এই চিকিৎসা পদ্ধতিটো আৰু ইয়াত অসমৰ ৰাইজে এইখিনি সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে. ডায়েবেটিছ হওক, কেঞ্চাৰ হওক, স্কিনৰ প্ৰব্লেম হওক, কাৰ্ডিয়েক প্ৰব্লেম হওক, সকলোবিলাক পেইন হওক, সকলোবিলাক প্ৰব্লেমৰ সলিউশ্যন আছে ছাৰৰ হাতত. আৰু এবাৰ আপোনালোকে আহি ছাৰক দেখাব পাৰে. আৰু ইতিমধ্যে গ্ৰেণ্ড অপেনিং হৈ গৈছে গুৱাহাটীত এই অনুষ্ঠানটোৰ. ছাৰ आपका ये नाम क्या है? अभियाना. अभियाना मीन्स क्या है सर? अभियाना हेल्थ. अभियाना बोले तो many meanings, it has many meanings. उसमें few meanings है ग्लोरियस, बहुत अच्छा और बढ़िया, and something growing, always growth रहता है उसमें. So संस्कृत में अलग सा मीनिंग है, इसमें अलग सा मीनिंग है. जो भी है बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत. जैसा ओजोन सी ट्रीटमेंट जैसा हमारे पास और ट्रीटमेंट्स है, हाइड्रोजन ट्रीटमेंट, रेड लाइट थेरेपी, मिथिलीन ब्लू ट्रीटमेंट, ऐसा बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं. जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं स्पेसिफिकली उन लोगों का पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है. पर्सनलाइज्ड जो भी उन लोगों का इश्यू है उन लोगों के लिए वो थेरेपी डिज़ाइन करके उन लोगों को दिया जाता है. तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट्स है, बहुत अच्छा हो जा रहे पेशेंट्स. सो ये जो आपने पूछा अभियाना का मतलब ग्रोथ है और बेस्ट ट्रीटमेंट्स. और हमारे पास जो पेशेंट्स एक बार आते हैं वो एक बार पूरा ठीक होके वापस मेरे पास नहीं आना, वो मन से हम ट्रीटमेंट करते हैं. ओके सर, ये ट्रीटमेंट ओजोन ट्रीटमेंट के बाद वो टेबलेट्स वगैरह ये कम हो जाता है लोगों का? बहुत कम हो नहीं पड़ता है? नहीं, बहुत कम हो जाता है. कम कर सकते हैं. क्यों बोले तो ओजोन ट्रीटमेंट से क्या होता है, अपने शरीर के अंदर अपने बॉडी में सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म्स और रिपेयर मैकेनिज्म्स चालू कर देता है ओजोनाइड्स. ओजोनाइड्स जब अंदर जाता है ड्रिप के माध्यम से, ब्रीदिंग के माध्यम से, किसी माध्यम से जब बॉडी के अंदर जाता है वो केमिकल चेंजेस ऐसा इंड्यूस करता है तो वो रिपेरेटिव मैकेनिज्म शुरू हो जाता है. पूरा सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म शुरू होके
body is almost back to 100% normal. बॉडी खुद काम करना शुरू करता है. वो जो ब्लॉकेजेस रहता है, हाँ. वो जो सेलुलर सिग्नलिंग प्रोसेसेस रहता है, वो जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, ये सब ऑप्टिमाइज करके Okay. बॉडी का सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म्स जब शुरू होता है, तो nothing like self healing. The Okay. best healing is self healing, Okay. and all the mechanisms will be corrected internally. ইণ্টাৰনেলি অজন থেৰাপিৰ জৰিয়তে ছাৰে ক'লে যে আপুনি যদি মেডিচিন খাই আছে বা মেডিচিন তেওঁলোকেতো মেডিচিন নিদিয়ে অজন থেৰাপিৰ জৰিয়তে, আৰু যেতিয়া সেলফ হিলিং হয় তেতিয়া বডিয়ে নিজে নিজে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে. सर और एक क्वेश्चन था सर, सबके साथ होता है 100% ट्रीटमेंट होता है, सबके साथ होता है, और क्या क्या वो लोग छोड़ना पड़ता है? ये स्क्रीन टाइम हो गया, Yeah. आप लोग का बेड, वो आप लोग बहुत कुछ खाते हैं ना आजकल. तो ये क्वेश्चन कैसा है तो बोल तो हाँ. आजकल जी लाइफस्टाइल के बारे में. सबके पास ज़्यादा पैसा है, सबके पास ज़्यादा टाइम है, मगर कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं. इतना अच्छा पैसे, इतना अच्छा लाइफस्टाइल होके भी क्यों इतना डिसीजेस आ रहे हैं? क्यों शुगर ज़्यादा हो रहा है? क्यों कैंसर्स ज़्यादा हो रहा है? क्यों पेट का प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है? क्यों घुटनों का प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है? ऐसा हम सोचे तो ये मल्टी मॉडल डिस्कशन हो जाता है. पहला जो हम सांस ले रहे हैं, एयर से लेके, पानी से लेके, साउंड से लेके, पोल्यूशन ज़्यादा है. यस. खाने में भी हम उतना पेस्टिसाइड्स आ रहा है, उसमें सॉइल में पेस्टिसाइड्स जा रहा है, सॉइल में मिनरल्स भी बहुत कम है, तो आरओ वाटर पी रहे हैं. इसके अलावा हम रात में देर में सोते हैं, देर में खाते हैं, और ये ब्लू लाइट जो मोबाइल देखते हैं ना, ब्लू लाइट देखने में ये सब हमारा इंटरनल सिस्टम्स को डिस्टर्ब कर देता है. हमारा सेलुलर मैकेनिज्म, सेलुलर सिग्नलिंग सबको डिस्टर्ब कर देता है. तो the beauty of ozone treatments is that all this cellular signaling, oxidative stress from all these external factors is managed very well, so that the body can heal. Body goes into healing mode. Now वो एक फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है, मगर हम भी हमारा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है. हम भी खाना शाम के 6 बजे नहीं तो 7 बजे के पहले खाना है, 9 बजे से 10 बजे के अंदर सोना है, सुबह 4 बजे उठना है, ये मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन टाइम कम करना है. ये लाइफस्टाइल चेंजेस हम भी लेके आना है. Okay. ये हम लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ हम जब ओजोन थेरेपी करते हैं, तो आपका क्वेश्चन 100% आंसर कर सकते हैं, 100% रिजल्ट दे सकते हैं. एक्जेक्टली. যেতিয়া আপুনি ওজন থেৰাপি লৈ থাকিব তেতিয়া আপুনি স্ক্ৰীন টাইম কমাব লাগিব, আপুনি ভাল খানা খাব লাগিব, আপুনি ভাল উশাহ ল'ব লাগিব, আপুনি ভাল পানী খাব লাগিব, আপুনি লাইফষ্টাইল চেঞ্জ কৰিব লাগিব, আৰু যিটো ওজন থেৰাপিৰ জৰিয়তে ছাৰে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, আৰু যিটো সাউথ ইণ্ডিয়াত প্ৰায় হৈছে, আৰু সেই বস্তুটোকে ছাৰে অসমলৈ আৰু নৰ্থ ইষ্টলৈ লৈ অহাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে. আৰু ছাৰৰ বিষয়ে যদি আৰু বেছি ভালকৈ আপোনালোকৰ জানিব মন যায়, ছাৰৰ লগত কৰা যিটো মোৰ পডকাষ্ট আছিলে সেইটোৰ লিংক মই আপোনালোকক দি দিছোঁ, তাত গৈ চাব, কাৰণ ছাৰে মই প্ৰায় এঘণ্টা সময় তাত খুব ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰিছিলোঁ. ছাৰ अभी तो बहुत कुछ मुझे सिखा दिया सर, और आपका ये नया जो बिल्डिंग आप लिया, ये नया चैम्बर आपने खोल लिया सर, हम लोगों की तरफ से शुभकामनाएं हैं सर आपको, और आशा करते हैं कि लोग यहाँ पे आइएगा और आपके साथ बात करेगा, उसके बाद प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन लोगों को मिल जाएगा. सर एक बार देख सकते हैं कैसे होता है, क्या होता है वो एक बार डेफिनेटली जाके. হাতীগাঁৱত থকা আভিয়ানা হেল্থ, আৰু য'ত ওজন থেৰাপি হ'ব, আৰু যাৰ বাবে সকলোবিলাক প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে চলিছে, আৰু কেইবাজনো ডক্টৰ আহিছে, বিশেষকৈ ছাৰ আমাৰ লগত আছে, ছাৰৰ লগত মই কথা পাতিছোঁ. ছাৰ यहाँ पे ही होगा ओजोन थेरापी, सो क्या होगा, कैसे होगा, और यहाँ पे ये थोड़ा मशीन वगैरह वगैरह ये सब तो आ गया सर. तो पहला सेंटर है गुवाहाटी में, असम के लिए और नॉर्थ ईस्ट के लिए. तो हम सोचे ओजोन थेरेपी से शुरू करें. बहुत सारे थेरेपीज हैं. तो इस सेंटर में हम ऐसा बनाए हैं, 3 बेड बनाए हैं जी. 3 बेड और थोड़ा स्पेसिफिक मेडिकेशंस के लिए जगह, चेम्बर सब जी. तो इसमें क्या होता है, अपना आप इधर देखिए तो
ये ओजोन मशीन इसके अंदर रहता है, ओके तो इसमें पानी भरे रहता है, तो ये ड्रिप्स के माध्यम से अंदर जाता है, वो Okay. सलाइन ओजोन मशीन बोलते हैं इसको। ओके नर्व्स में जाता है हाँ, नर्व्स में जाता है। Okay, okay. 1 घंटे का नहीं तो 1.5 घंटे का ट्रीटमेंट होता है हर एक बार जब आए तो। हाँ। हफ्ते में 2-3 बार नहीं तो एटलीस्ट 2 टाइम्स आना पड़ता है, वो कंडीशन के हिसाब से हम खत्म कर रहे हैं। तो ओजोन मशीन्स है, ओजोन मशीन तो ऑक्सीजन सिलेंडर रहता ये है। ऑक्सीजन या ओजोन है ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन है, सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर से इसका कनेक्ट होता है। Okay. तो ये अंदर इसके पीछे ओजोन मशीन है, Oh, तो ओजोन जनरेट होके बाहर निकलता है, बाहर निकल के इसमें जो पानी रहता है इसमें मिक्स हो जाता है ओजोन, वो दैट सलाइन वाटर विल गो इनटू द ड्रिप। ओके ओके सर ओजोन कैसा होता है लिक्विड होता है या हवा होता है गैस होता है ना गैस। जब हम बबलिंग करते हैं, हाँ, इट्स कॉल्ड बबलर, इसको बबलर बोलते हैं। Okay. मैं वो यही बोल रहा था, ये जो मेक इन इंडिया हमारे प्राइम मिनिस्टर का स्कीम है, ये बबलर पहले जर्मनी से मंगाते थे, बहुत एक्सपेंसिव होता था। आज इंडिया में बना रहे हैं 1/3 ऑफ द कॉस्ट, ओके 1/3 ऑफ द कॉस्ट इंडिया में बन रहा है ये बबलर। काम होता है पूरा सर बराबर, very good. Same results, everything we are getting. Same ozone machines also what we used to buy abroad. Now these ozone machines are made in India with all this touch screen and everything like that. ये टच स्क्रीन होता है ना सर Yeah, it. ओके So आपको ये कंपनी का नाम है जो बनाते हैं यालमेट बोल के। ओके तो इसमें जो बटन्स हैं, टाइमिंग वगैरह सब एडजस्ट कर सकते हैं। तो इट्स ऑल बिकमिंग मोर एंड मोर गुड। सर इसका साइड इफेक्ट कुछ होता है सर ओजोन का मैं 11 साल से कर रहा हूँ, जी एक भी साइड इफेक्ट अब तक नहीं देखा, ओके 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 एक भी साइड इफेक्ट नहीं देखा अब तक। थोड़ा बहुत लोगों को अकेशनली थोड़ा खांसी आता है, कॉफ, वो 10-15 मिनट में चल जाता है, वो भी स्पेसिफिक ओजोन हम ब्रीदिंग जब देते हैं ओके तो वो भी हम विटामिन सी ले लिए तो वो भी खांसी चले जाता है विदिन 10 मिनट्स। okay. और किसी की अदर ट्रीटमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके सर अभी यहाँ पे इस चैम्बर में कौन कौन डॉक्टर आएगा, कैसे ट्रीटमेंट होगा और लोगों को आके यहाँ पे रुकना पड़ेगा, कितना दिन रुकना पड़ेगा, कैसे ट्रीटमेंट होता है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए सर। हाँ, तो इधर मैं गुवाहाटी हर एक महीने में आऊँगा। मैं जब आऊँगा 1 हफ्ता 10 दिन ठहरूंगा। मेरे साथ मैं ट्रेन करा वो डॉक्टर्स इधर ही ठहरेंगे। ओके वो हमारा जब ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं, यूजुअली 4 हफ्ते का, 8 हफ्ते का, 12 हफ्ते का ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। तो गुवाहाटी में रहने वालों का कुछ तकलीफ नहीं रहता है, वो इधर से घर से बाहर से आने वालों का एटलीस्ट 2-3 हफ्ते का प्लान बना लिए तो आराम से इधर ट्रीटमेंट हो जाएगा। हमारा जो ट्रीटमेंट प्लान है, हमारा अगेन क्या है, सिस्टम सब सेंट्रलाइज्ड है। सो इधर जो कंप्यूटर में जो फीड करते हैं, मैं किधर भी अपने फ़ोन ऐप से देख सकता हूँ। पेशेंट्स का भी वो एक्सेस रहेगा, तो ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, ट्रीटमेंट करेक्ट चल रहा है। ट्रीटमेंट में अगर कुछ रिव्यू बोल के रहता है, रिव्यू करेंगे, अगर कुछ चेंज करना पड़ता, थोड़ा रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा आ गया बोल तो आप समटाइम्स पूरा ट्रीटमेंट ख़त्म करने के पहले भी हम स्टॉप कर सकते हैं। हाफ द टाइम ट्रीटमेंट के बाद थोड़ा चेंज करना पड़ता, वो भी कर सकते हैं। सो 2-3 महीने का प्लान बना के आ गए तो हम आराम से उन लोगों को सब ठीक कर देंगे। एक बार फिर बता दीजिए सर, कौन सी पेशेंट यहाँ पे आना पड़ेगा, कौन सी बीमार लेके वो आ सकते हैं और कितने साल से कितने साल तक लोग आ सकते हैं? हम ओजोन थेरेपी दे रहे थे 10 महीने की बच्चे, 10 month old child also we give ozone therapy. Which problems? During COVID. कोविड के टाइम सांस लेने में का प्रॉब्लम? फीवर कम ही नहीं हो रहा था। ओके ओके फीवर 5-6-7 दिन कम नहीं हो रहा था, बहुत हाई फीवर था। तो उन लोगों को रेक्टल ओजोन बोल के दिए। रेक्टल बोले तो जो पीछे से देते हैं, वो रेक्टल ओजोन दिए। वो 1 नहीं तो 2 सिटिंग के बाद ठीक हो गया, फीवर ठीक हो गया, बच्चा भी ठीक हो गया। ओके तो 10 महीने से लेके हम 80 इयर्स 90 इयर्स तक ओजोन दे सकते हैं। कंडीशंस अब बताए तो सब कंडीशंस, अब ब्रेन का कंडीशंस है, पूरा न्यूरोलॉजी का कंडीशंस है, मेमोरी लॉस है उन लोगों का, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ये
कुछ ये बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस मतलब ऑटो इम्यून डिजीजेस। सो ऑटो इम्यून डिजीजेस का बहुत बड़ा लिस्ट है। ऑटो इम्यून डिजीजेस में भी ट्रीटमेंट और रिजल्ट्स, वन ऑफ द वेरी 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 गुड रिजल्ट्स यूजिंग दिस मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट। ऑटो इम्यून डिजीजेस में बहुत अच्छा रिजल्ट्स आता है ओजोन थेरेपी के माध्यम से, और अदर ट्रीटमेंट्स आल्सो वी एम्प्लॉय, थोड़ा मेडिसिन देते हैं। बाद में आपका जो भी है फेस में आपको एक्ने बोल के वो ये आता है बच्चों में, वो टीनेजर्स में आता है वो हाँ पिंपल्स का भी बहुत अच्छा रिजल्ट्स है। वो स्किन ओजोन, स्किन हम क्या करते हैं स्किन के कंडीशंस में, पहला गट टी करते हैं। गट टी यहाँ पे पता चलता है, यहाँ से शुरू होता है। तो स्किन हम गट जब टी करते हैं, स्किन सोरियासिस हो जाता है, जो भी है स्किन डर्मेटाइटिस है, वो सब ठीक हो जाता है। बाद में लंग कंडीशंस का भी, लंग कंडीशंस जो ब्रीदिंग मुश्किल है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज बोल के एक बोलते हैं, उसमें बहुत कम ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। स्टेरॉइड्स दे देते हैं फाइनली, तो उसके बाद पेट का, घुटनों का, सब का ट्रीटमेंट होता है इधर। जिसको रिजल्ट्स नहीं आ रहा है, आजकल पेशेंट दवाई ले रहे हैं मगर उसका बेनिफिट नहीं हो रहा। नहीं तो जिन लोगों को दवाई लेने का मन नहीं रहता मगर पेन में रहते हैं, जो दवाई में इंटरेस्ट नहीं होता, वो माइंडसेट ऐसा रहता है पेशेंट्स, थोड़े बहुत पेशेंट्स का, वो लोग। और जो भी ये कंडीशंस में बताया, ये जब पूरा लिस्ट नहीं है, थोड़ा लिस्ट बताया मैं, जो भी आपका जो भी इश्यू है, आपको इधर आए तो एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। अवियाना हेल्थ में इधर आज गुवाहाटी में बहुत खुशी से हम आ रहे हैं फर्स्ट टाइम। डेफिनेटली आपका अच्छा रिजल्ट होगा, अच्छा सॉल्यूशन होगा। आप जिसने सोचा भी नहीं वैसा सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन मिलने से आपका पूरा ठीक होने का भी हो सकता है, पूरा ठीक हो जाए पूरा। लास्ट क्वेश्चन सर, ये जो थेरेपी, ओजोन थेरेपी, ये इंडिया में और वर्ल्ड में 100 साल पुराना थेरेपी है ये सर? हाँ, और इंडिया में आज 20 साल से 15-20 साल से चल रहा है। और ये साउथ में पूरा चल रहा है अभी? साउथ में चल रहा है, बॉम्बे में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, आपको हैदराबाद में, बेंगलुरु में, चेन्नई में, और चेन्नई में और तमिलनाडु में और ज़्यादा सेंटर्स है। साउथ में बहुत अच्छा चल रहा है। जो पोल्यूटेड सिटी होता है वहाँ पे ज़्यादा चलता है ये, वो एक है। दूसरा है रीज़न अवेयरनेस मतलब डॉक्टर्स को भी अवेयरनेस कम है, और उससे ज़्यादा पेशेंट्स को भी अवेयरनेस कम है। हम डॉक्टर्स को भी अवेयरनेस देना चाह रहे हैं। डॉक्टर्स जो भी डॉक्टर्स आज ओजोन थेरेपी यूज़ कर रहे हैं इंडिया में और अब्रॉड में, कहाँ भी यूज़ कर रहे हैं, उन लोगों का रिजल्ट्स देख के, रिजल्ट्स से वो थोड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम डॉक्टर्स को भी हम ऑलरेडी ऑनगोइंग थोड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, और ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करेंगे। तो जब डॉक्टर्स का अवेयरनेस बढ़ेगा तब वो यूज़ करना शुरू करेंगे, तब पेशेंट्स का अवेयरनेस बहुत बढ़ेगा। ये हर डॉक्टर यूज़ कर सकते हैं ये थेरेपी? हर डॉक्टर एक्चुअली, आप बहुत अच्छा सवाल पूछे। तो आजकल आप तो MBBS है, आप तो यूके से पढ़ाई करके आया सर, तो आप MBBS करके वो तो अलग हो गया ना, मेडिसिन देते हैं ये सब करते हैं, लेकिन वो छोड़ के आप यहाँ पे आ रहे हैं, ये सभी डॉक्टर्स कर सकते हैं ये सब? वही, इसलिए बोला, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्यों बोले तो मैं MBBS डॉक्टर हूँ, मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ। हमारा ये इसको बोलते हैं फंक्शनल एंड रीजनरेटिव मेडिसिन के अम्ब्रेला से हम करते हैं ये। ऑल MBBS डॉक्टर्स हम जब ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट ले लेते हैं, कर लेते हैं। आज गवर्नमेंट का इनिशिएटिव ये है, आयुष डॉक्टर्स भी ये करना चाहिए बोल के गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। इसके हिसाब से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन बोल के पुणे में है एक इंस्टीट्यूट, आयुष मिनिस्ट्री के नीचे है वो इंस्टीट्यूट। आयुष मिनिस्टर तो हम लोग का यहाँ से ही है, सर्बानंद सोनोवाल। हाँ, उसका डिपार्टमेंट में, NIN में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है ओजोन के बारे में। ऐसा 1-2 अच्छा सेंटर्स हैं जो ओजोन का ट्रेनिंग देते हैं। हम इधर जो करते हैं बहुत एडवांस्ड ओजोन थेरेपी है। वहाँ ट्रेनिंग करके वो डॉक्टर्स हमारे पास आके
2 महीने 3 महीने ऐसा ठहर के सीख के जाते हैं, सीख के जाके वहाँ सेटअप उन लोगों का जो गांव में जो प्रैक्टिस है और सिटीज़ में जो प्रैक्टिस है ऐसा भी करते हैं। तो हमारा बहुत ये अवेयरनेस स्प्रेड करना है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये बात अलग डॉक्टर क्यों नहीं बोलते हैं सर? उन लोगों का प्रॉफिट के लिए या उन लोगों का वो भी चलता रहेगा सर? मैं आप भी डॉक्टर है लेकिन मैं ये पूछना पड़ेगा सर। नहीं, हर एक मेडिसिन का एक रोल होता है। जो एलोपैथिक मेडिसिन का रोल है अक्यूट इमरजेंसीज, मेडिकल इमरजेंसीज में 100% एलोपैथिक मेडिसिन का रोल है। हमारा पुण्य भूमि में ये जो भारत माता की पुण्य भूमि में आयुष का ट्रीटमेंट्स हजारों सालों से चलते आ रहा है। एलोपैथी मेडिसिन इज ओनली 100-200 years old। यस 5000 years पहले ये सब था। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स, आयुष डॉक्टर्स, वी हैड अ सिस्टम इन प्लेस, एवरीबडी इज फॉलोइंग, उसमें भी रिजल्ट्स आता है। सो जब ये फैंटास्टिक गवर्नमेंट इनिशिएटिव इज टू मैरी दीज टू डिसिप्लिन्स एंड वो भी कर रहे हैं, वो नीति आयोग के माध्यम से ऑलरेडी ये सब कर रहे हैं। सो ये भी और नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। तो अभी आयुष थोड़े बहुत आयुष मेडिकल कॉलेजेस में ओजोन थेरेपी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। वो एक्चुअली सिलेबस में भी यूनिफॉर्मली इट शुड कम अक्रॉस ऑल बोथ एलोपैथिक मेडिकल कॉलेजेस एंड आयुष मेडिकल कॉलेजेस। अगर आए तो हम 10 साल में ऐसा सेंटर बोथ आ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। और আপোনালোকক মই কওঁ যিখিনি কথা বেলেগ ডক্টৰে হয়তো নক'ব, বেলেগ চিকিৎসালয়ত হয়তো আপোনালোকক নক'ব, কাৰণ ইয়াত বহুতখিনি কথা জড়িত হৈ আছে। এনে কিছু ট্ৰিটমেণ্ট আছে যিবিলাক ট্ৰিটমেণ্ট আজি 5000 বছৰ পুৰণৰ পৰা, মহাভাৰতত আপোনালোকে শুনিব, ৰামায়ণ মে আপ লোক শুন सकते हैं। আৰু এনেকুৱা বহুত ট্ৰিটমেণ্ট যিবিলাক ট্ৰিটমেণ্টৰ বিষয়ে আপোনালোকে নাজানে, যিবিলাক ট্ৰিটমেণ্টৰ বিষয়ে জনাবৰ বাবে এনেধৰণৰ কিছু সৰু সৰুকৈ মানে প্ৰতিষ্ঠান আৰম্ভ হৈছে অসমত। গতিকে মই আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কিছু তথ্য জানিব পাৰিছে আৰু বাকীখিনি কথা আপোনালোকে ছাৰক লগ কৰিব, ইয়াত আহি যোগাযোগ কৰিব আৰু আপোনালোকে এটা সলিউশনত উপনীত হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। থ্যাংক ইউ সো मच सर। और लास्ट कुछ बोलना चाहते हैं सर? बहुत बहुत शुक्रिया, आपको शुक्रिया बोलना चाहूँगा कि आप इतना टाइम लेके हमारे पास आके, लास्ट टाइम भी आपका पॉडकास्ट बहुत सक्सेसफुल था। तो लास्ट टाइम पॉडकास्ट देखने के और सुनने के बाद लॉट ऑफ पीपल फ़ोन करके इधर कब शुरू कर रहे बोले। सो हम आ गए आपके गुवाहाटी में। सो whatever problems you have, we have a solution for it at Aviana Health. Aviana Health ওজন থেৰাপি মনত ৰাখিব। আৰু মই নাম্বাৰটো কৈ দিছোঁ, 1 সেকেণ্ড হোল্ড কৰক, 1 সেকেণ্ড ৰৈ থাকক। আৰু মই নাম্বাৰটো কৈ দিছোঁ, মনোজ শৰ্মা, মনোজদাৰ নাম্বাৰ ইতিমধ্যে কৈছিলোঁ, তলত লিখি দিছোঁ, এবাৰ গাই দিছোঁ, আপোনালোকে মনত ৰাখিব 8056213724। এই নম্বৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। আৰু এড্ৰেছটো মই কৈ দিছোঁ, হাতীগাঁও মেইন ৰোড, গুৱাহাটী, লেণ্ডমাৰ্ক হোটেল ডি সাফায়াৰ নেক্সট টু ডি সাফায়াৰ, একদম কাষতে আৰু য'ত এইখিনি আছে। আৰু কাইলৈ যিহেতু অপেনিং হ'ব, গতিকে মই আজি ছাৰক লগ পালোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি দিলোঁ। বহুত বহুত ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ।